MySQL. Let's see. We are looking for SQL command. We are going to learn about the SQL commands. As in my previous class, I have told you that we are having the set of 4 SQL commands. First is data definition language, data manipulation language, transaction control language, and data control language. These are the 4 types of SQL commands, right? So we will learn about all these commands one by one. We'll learn about all these commands one by one. First one stands here for the data definition language. Data definition language. In my last class, I have told you that this command is used to create or modify the schema. Simple 2 words for this is that create or modify, create or modify a schema. Now, once again, let me take you back. What is meaning of this word schema? These are the database objects where we store the data. These are the database objects. Database objects, right? Database object in which we store data. Okay, in which we store data. Example is, one of the example is table, view. Okay, 2 example I had given you, right? I hope you have understood what is the now. Let's define the DDL command. These are the SQL command which is used to create, as I have already told, create, alter, delete database objects. These database objects is also called as schema, like table, views, and index. Example of this types of command. Example of this type of command is create, alter, and drop. We will see one by one. At the first side, definition must be clear to you. हिंदी में अगर हम इसको समझा देते हैं तो ये वैसा SQL कमांड है जिससे हम स्कीमा ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं. स्कीमा ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? तो स्कीमा ऑब्जेक्ट्स डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को हम स्कीमा कहते हैं, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं. टेबल, व्यू, these are the 2 common schema objects, schema available in database. I hope it is clear. तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का सीधा मतलब ये होता है कि वैसा SQL कमांड जिससे हम स्कीमा को क्रिएट करें, मॉडिफाई करें, डिलीट करें. Schemas, these are the physical database objects in which we store the data. I hope you got it. Next to it, we have data manipulation language. Now, create, modify. हमने यहाँ बोला अभी क्या बताया? क्रिएट और मॉडिफाई स्कीमा. हमने यहाँ 2 ही बात बोला था, क्रिएट और मॉडिफाई स्कीमा. 2 ही बात हम यहाँ पर बताए थे. ये वाले में हम यही बात बोले, क्रिएट और मॉडिफाई स्कीमा. क्रिएट और मॉडिफाई schema, right? A schema is database object. I have taught you. Now, when we come to the DML, data manipulation language, it is used to modify the data, right? Now, basic difference between this and this is here that basic difference is that here we modify the schema, whereas in this one we modify the data. Basic difference इतना ही का है, ठीक है? This is the basic difference. I hope you got it. Example of DML commands. This is select, insert, delete, and update. We will see each one of them one by one. तो फिर से अगर हम हिंदी में इसको बात को समझा दें तो डेटा DML कमांड्स आर सच कमांड. ये वैसे कमांड होते हैं जिसके थ्रू हम
स्कीमा के अंदर में डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। पहले वाले से हम क्या बनाए, डीडीएल से स्कीमा ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन किए। दूसरे वाले से क्या करते हैं, स्कीमा के अंदर में डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। डेटा को चेंज, मैनिपुलेट का मतलब डेटा को इंसर्ट करना। इफ आई टॉक अबाउट द मैनिपुलेशन, ये मैनिपुलेशन का बात करते हैं अगर हम, तो मैनिपुलेट में हमारा 3 चीज आ जाता है। वो होता है आई फॉर इंसर्ट, यू फॉर अपडेट, डी फॉर डिलीट, IUD ऑपरेशन। ठीक है, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML और सच टाइप ऑफ कमांड, ये वैसे कमांड होते हैं जिसका हेल्प लेकर हम स्कीमा ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करने का मतलब हो गया, मैनिपुलेट करने का मतलब हो गया कि हम इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करते हैं। किसका इंसर्ट करते हैं स्कीमा ऑब्जेक्ट के अंदर, डेटा को इंसर्ट करते हैं। किसको अपडेट करते हैं, डेटा को अपडेट करते हैं। किसको डिलीट करते हैं, डेटा को डिलीट करते हैं। एक वाले से हमने स्कीमा ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरे वाले से हमने स्कीमा ऑब्जेक्ट के अंदर में डेटा को मैनिपुलेट किया। आई होप यू गॉट इट। Third one here we have, that is transaction control language. Right, third one we have the transaction control language. Now what do you mean by the transaction? In commerce, lane or then, transaction means, ट्रांजेक्शन अगर हम कहते हैं तो बाइंग और सेलिंग हो गया हमारा ट्रांजेक्शन, बाय या सेल। ठीक है, बाय सेल। गिव टेक, पैसे का लेना देना हो गया ट्रांजेक्शन। तो ठीक इसी प्रकार ट्रांजेक्शन हमारे एसक्यूएल में आते हैं। ट्रांजेक्शन हमारे एसक्यूएल में आता है, वो हो जाता है हमारा ट्रांजेक्शन हमारे एसक्यूएल में जो होता है वो स्कीमा के अंदर में डेटा को, स्कीमा के अंदर में डेटा को डालना और निकालना या उसको मॉडिफाई करना, इसको भी हम लोग कहते हैं ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, oh I hope you have got that understood the basic difference between DDL, DML and TCL. Now let's see each commands one by one. Right, now in order to create the database we use the command create database. देखो यहाँ पर एक एक करके देखते जाएंगे। डाटाबेस को अगर क्रिएट करना है तो हम कौन सा कमांड को यूज करते हैं, हम लोग कमांड को यूज करते हैं क्रिएट डेटाबेस। एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पर डेटाबेस, डेटाबेस दिस इज द स्ट्रक्चर, it is a container inside which all the database objects resides. ठीक है, चाहे वो टेबल हो, एक टेबल हो, 2 टेबल हो, 3 टेबल हो, 4 टेबल हो, सारा एक डेटाबेस के अंदर ही रहता है। वो एक डेटाबेस के अंदर रहता है। मान लो एक हमारा टेबल है, डेटाबेस है स्कूल। सपोज आई हैव अ डेटाबेस स्कूल। Inside this school, I have one table STD, I have one table marks, I have one table CCA, I have one table discipline. Okay, discipline. So all these 4 tables lies inside the database school, right? So first we have the command, that is how to create the database. The command is create database, and here we have given the name of the database, that is school, right? So create database. Now my question goes to you, which type of command it is? Here it is create. So which type of command it is? It is DDL. Why it is DDL? Because it is creating a physical structure to store the data, right? So first, how to create the database? We create database using command create database. Next we have opening a database. We open database को बना दिए, database को open करने का command क्या है? Use, and then we write the name of the database. The name of the database is here school, hence we have written use school. बिना database को open किए हुए, बिना database को हम open किए हुए उसमें टेबल नहीं बना सकते हैं। पहले डेटाबेस बनाना है, उसको ओपन करना है और उसमें टेबल बनाना है।
So use question may be asked, what is use of use command? It is used to open the database, right? Use is used to open the database. Now you can see the list of database by using the command show databases. Mind it, here you have to use plural bases, right? You have to use bases. It will show the list of all the database present inside your computer, या present inside MySQL, right? Similarly, we have another table, that is show tables. दोनों में क्या अंतर है between show database and show table? The difference is that show database, it display the name of all the database present in our computer. It present in our computer or in MySQL. Second, show table, it display the name of, ये क्या करता है? It display the name of all the tables present in the database. It display the name of all the tables, all the tables present in database, present within database, right? I hope it is clear. Then we have the next command, that is drop database. Now which type of command it is? Drop database. It is used to delete the database. It is used to delete the database, right? Drop database, and here we have given the name, that is school. So school is the name of the database. Now here similarly we have drop table student. It is used to delete the table student. I hope it is clear. Next we have the describe, viewing the table structure. In order to see the structure of table, we use describe. Describe is a command followed by the table name. Here the student is the table name. This is the table name. Okay, this is table name. Okay, so my dear, here we have two things. One, we have written drop database, and second, it is table. What is the difference between both? Drop database, delete the database. Drop table, delete the table, right? This is the basic difference. In both, we provide this is the name of the database, this is the name of the table. I hope you got it. Next, let's proceed to the next slide. Okay, now data type in MySQL. This is very important. You must keep this thing in your mind. Data type. So first we have here the numeric data type. First here we have the numeric data type. Okay, this is numeric data type. Second is date and time data type. This is string data type. Okay, string data type. You can say next. So I hope it is clear to you. More we can say this is, now when we talk about the numeric data type, in numeric data type it is integer, it is a small integer, and this is float or decimal. These are the subtype of the numeric data type. हम लोग इंटीजर का बहुत यूज किए हैं, ऐसे लिखते हैं इंटीजर 3, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसका हम लोग बहुत यूज किए हैं, ठीक है। तो ये INT, दिस इज इंटीजर डेटा टाइप, up to 11 digit. Okay, I hope it is clear to you. Next we have another data type, that is date and time data type. Date and time data type, ध्यान इसमें ये रखना है कि जब हम डेट एंड टाइम डेटा टाइप देंगे तो यहाँ पर हमारा डेट का फॉर्मेट YYMMDD होना चाहिए, ठीक है। टाइम का फॉर्मेट HHMMSS होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप के पास दो हमारे टाइप आते हैं, सब टाइप। फर्स्ट इज कैरेक्टर, सेकंड इज varchar. Character, it stores the fixed length character, right? Fixed length. And second is varchar, it's of variable length up to 255 character. Very important question is asked, what is difference between char and varchar? char और varchar में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखो बाबू, यहाँ पर अगर हम मान लो लिखते हैं नेम,
ठीक है, नेम, और इसका डेटा टाइप हम लिख दिए कैर 10, और यहाँ पर एक और लिखते हैं NAM नेम, और यहाँ पर लिख दिए varchar 10। ठीक है, तो जब हम कैर 10 लिखे, मान लो हम नाम देते हैं GOLU गोलू, और यहाँ भी देते हैं गोलू, तो कैर वाले में क्या होगा, ये हमारा 10 यूनिट हमारा रिजर्व हो जाएगा। और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हियर इट इज 10 GOLU, ये स्पेस हमारा अनयूटिलाइज रह जाएगा, अनयूटिलाइज रह जाएगा ये कैर में। वैरकेर में क्या है, वैरकेर में क्या होगा, वैरकेर में मान लो यहाँ पर हम ब्लू से बना देते हैं, मान लो हमारा 10 का हम रिजर्व रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 इधर रख लेते हैं, 9 10, मान लो हम यहाँ पर नाम लिखते हैं GOLU, तो हमारा ये जो मेमोरी है यहाँ पर से ये वाला जो है ये इतना, ये खत्म हो जाएगा, मेमोरी अननेसेसरी मेमोरी को ये कंज्यूम नहीं करता है। ठीक है, ये हमारा इतना ही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा ये 10 तक कंटेन करेगा, अगर 10 से कम रहेगा तो उतनी मेमोरी को ये फ्री कर देगा, ये वेरिंग है। ठीक है, और कैर फिक्स होता है जबकि वैरचर वेरिंग होता है। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग द टेबल, टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, पहले हम लोग देखो इसी टेबल को हम लोग देख लेते हैं। हम लोग इस टेबल को देखेंगे, यहाँ पर देखो ये टेबल है हमारा STID नेम FNAME DOB सिटी और क्लास। तो सबसे पहले टेबल जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि टेबल में एट्रीब्यूट्स कितने हैं। तो फाइनली वी हैव 1 2 3 4 5 6 एट्रीब्यूट। ठीक है, 6 एट्रीब्यूट, ओके, 6 एट्रीब्यूट, ओके। किसकी कार्ड, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, हाउ मेनी कॉलम्स, 1 2 3 4 5 6, इसकी डिग्री कितनी है, 6 है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि इसमें कॉलम्स कितने हैं। तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम, सब कुछ जानकारी हो गया। उसके बाद जानकारी होनी चाहिए कि STID का डेटा टाइप क्या है। देखने सुनने से लग रहा है ये कैसा डेटा टाइप है, वैर या कैरेक्टर टाइप का है। ठीक है, कैरेक्टर टाइप का है। ये भी कैसा है, वैरचर या कैरेक्टर, जो रखना है रख लो, वैरचर रख लेते हैं। फिर FNAME कैसा है, ये भी वैरचर है, वैरचर है। DOB का कैसा डेटा टाइप है, तो डेटा टाइप है। सिटी कैसा है, तो ये भी जो है कैरेक्टर कहो या वैरचर कहो, कैरेक्टर कह देते हैं। क्लास कैसा है, इंटीजर डेटा टाइप है। सबका साइज भी लिख लेते हैं, इसका साइज क्या है, 2 है। इसका साइज कितना है, ज्यादा से ज्यादा मान लो हम 10 रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 तक तो है, हम इसको 10 तक रख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार FNAME देखो, इसको भी हम लोग 20 रख लेते हैं, मतलब 20 अक्षर का रहेगा, डेट का कोई साइज नहीं होता है। कैरेक्टर, इसका भी साइज हम लोग मान लो 20 रख लेते हैं। इंटीजर साइज इसका हम लोग 2 रख लेते हैं। तो इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए पहले। ठीक है, कि हमारा कॉलम कौन कौन सा है, कॉलम का नाम क्या है, तो नाम इसका STID है। डेटा टाइप इसका क्या है, कैरेक्टर है। साइज क्या है, 2 है। ठीक है, दूसरा फिर नेम है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हाउ वी विल राइट, यहाँ पर देखेंगे। हमारा कमांड क्या होगा, सबसे पहले हमारा कमांड होगा क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम देखो, यहाँ पर हमारा टेबल का नाम स्टूडेंट है, STUDENT। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद पहला कॉलम हमारा है STID, इसका कैसा है, कैरेक्टर, साइज है इसका 2, कॉमा दे देंगे। फिर उसके बाद नेम, डेटा टाइप क्या है, वैरचर,
वेर कैर साइज कितना रखे, 20 रखे। फिर उसके बाद क्या है, एफ नेम साइज क्या है, डेटा टाइप वेर कैर, साइज क्या है 20, ठीक है, साइज क्या है 20। ओके, फिर उसके बाद कॉमा देंगे, फिर क्या है डीओबी, इसका डेटा टाइप डेट टाइप का है, कोई साइज इसमें नहीं होता है। फिर उसके बाद सिटी कैसा है, कैरेक्टर टाइप का है, साइज 20, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, क्लास कैसा है, इंटीजर टाइप का है, डेटा टाइप, साइज 2। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, आई होप यू हैव गॉट इट, ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देख लो बढ़िया से, यहाँ पर क्रिएट टेबल हमने किया है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। देखो यहाँ पर क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ये हमारे टेबल का नाम है, स्टूडेंट इज द नेम ऑफ आवर टेबल। और ये जो है स्टूडेंट टेबल के अंदर में जितने भी कॉलम है सबका डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। आई होप इट इज नॉट विजिबल हियर, इसको हम कहीं पर किनारे करें, कलर इसको चेंज करके देख रहे हैं, रुक जाओ, कलर इसका चेंज कर दे रहे हैं। I hope it is not visible. चलो यहाँ रख देते हैं, ठीक है। I hope it would be visible here. I hope it is visible. ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिखा, सबसे पहले ये देखो यहाँ पर stid हमारा क्या है, ये हमारा पहला एट्रीब्यूट है stid, जिसका कैरेक्टर 2 का है, ये है हमारा पहला। देखो ये वाला है, ये वाले का डिस्क्रिप्शन हो गया। फिर हमारा सेकंड में नेम आता है, ये वाला, ठीक है, ऐसा लिखा, रुक जाओ, कंट्रोल जेड, लेट मी हाईलाइट इट, तो ये वाला हो गया। ये किसका है, तो ये जो है इसका है, ठीक है। फिर उसके बाद एफ नेम, ये बनाने आना चाहिए सभी को, एग्जाम में ये आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। फिर हमारा एफ नेम है, देखो ये इसका हो गया। फिर उसके बाद DOB है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, समझ में आ गया होगा। बिफोर वी प्रोसीड, आई होप यू वुड हैव गॉट इट, तो हटाते हैं। बिफोर वी proceed, all of you are advised to create this table. The name of this table is club. The name of this table is club. Write the SQL command to create this table. This is homework for you. This is homework. You will do it, and tomorrow I will proceed with the other commands. Other command available in this SQL. Today it is question that you should learn how to create this table. Tomorrow I will deal with all this command. This type of command you will get in your examination. So that will be fruitful to you. Don't forget to join, watch the video, solve the exercise, and I'm sure that you will be able to achieve your target. Thank you. Take care.